तो अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो આપ જોઈ રહ્યા છો સનાતન ન્યૂઝ નેટવર્ક જૂનાગઢ અહેવાલ વલ્લભભાઈ પરમાર ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન મુદ્દે જાગૃતતા લાવવા પ્રયાસ વન વિભાગે કહ્યું ખેડૂતોને કોઈ નુકસાન નથી માત્ર કોમર્શિયલ બાંધકામ કે અન્ય હેતુને લઈ પરવાનગી લેવી પડશે સાસણ ખાતે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન મામલે વન વિભાગ દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ડીસીએફએ જણાવ્યું હતું કે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનથી ખેડૂતોને કોઈ નુકસાન નથી માત્ર કોમર્શિયલ બાંધકામ કે અન્ય હેતુને લઈ વન વિભાગ પાસે પરવાનગી લેવી પડશે સરકાર દ્વારા જ્યારથી ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનને લઈ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે ત્યારથી જ જૂનાગઢ અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ખેડૂતો આ જાહેરનામાનો વિરોધ કરતા જોવા મળી રહ્યો છે ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરમાં રહેવા માટે અથવા પોતાના ખેતરમાં વાવેલા પાકના સંગ્રહ માટે ગોડાઉન ખેતર પરથી વાડ કે ખેતરમાં જવા આવવા માટેનો રસ્તો બનાવવા માટે વન વિભાગ પાસેથી કોઈપણ પ્રકારની મંજૂરી લેવાની જરૂર નથી ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન કયા કારણે બનાવવામાં આવી કઈ કઈ બાબતો છે જેને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી કઈ એવી બાબતો છે જેને કન્સિડર કરવામાં આવી એવી શું શું પ્રવૃત્તિઓ છે જેને સ્પષ્ટની જરૂરિયાત છે વિભાગને જણાવ્યું આજ રોજ વન વિભાગ તરફથી એક પ્રેસ બ્રીફિંગનું આયોજન કરવામાં આવે છે આ પ્રેસ બ્રીફિંગને આગળ જતા નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી ગીર પશ્ચિમ વન વિભાગ શ્રી પ્રશાંત તોમર સર શ્રી રાજીવ ઝા અને પ્રેસ મીડિયા મિત્રોને સમજાવવા એટલા માટે જરૂરી છે કે સામાન્ય માણસ સુધી આ વાત ખૂબ જ સારી રીતે પહોંચી શકે તો આ બાબતે હું નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી પ્રશાંત તોમર છે એમાં ઉપસ્થિત બધા પત્રકાર મિત્રોના આજની કાર્યશાળામાં સ્વાગત છે આજની કાર્યશાળા જો આપણે કરીએ છીએ આજે એનો મેઇન પર્પઝ એ છે કે આપણે જો અત્યારે સૂચિત ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જો 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ આજે પ્રસિદ્ધ જો થયા છે તો એમાં શું શું બાબત છે એમાં જે ગેરસમજ થઈ રહી છે તો એના બાબતને આપણે ચર્ચા કરવાની છે અને આપણે પત્રકાર જે મિત્રો જો છે એને માધ્યમથી આપણે જે સહી મેસેજ જો છે આ જનતા સુધી પહોંચે છે ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચે આ આજની જે વર્કશોપ જો છે એના મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે તો આપણી જે મૂવમેન્ટ હોય કે એનું જે પ્રાકૃતિક એનું જે હેબિટેટ છે આ બધા ઘણા બધા ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં રાખીને આ વિસ્તાર નક્કી કરવામાં આવે છે તો જે અફવાઓ વધે છે કે અમુક લોકોના કાઢી નાખ્યા અમુકના લઈ લીધા એ બધી અફવાઓ અહીંયા અસ્થાની છે તો કુટીર ઉદ્યોગ કરવો હોય લઘુ ઉદ્યોગ કરવો હોય દુકાન કરવી હોય નાની મોટી કૃષિને લગત કોઈ ફેક્ટરી કરવી હોય કૃષિ પેદાશોને લગત કે એવી બધી તો એમાં એ લોકોને સરકાર સુધી એટલે જે તે લાગુ કાયદા તો લાગશે જ પણ એમાં વન વિભાગની એનઓસીની જરૂરિયાત નહીં રહે ગામતળ પછી ગામતળ તો વિસ્તરી પણ શકે અત્યારે આપણી વસ્તી कदाच 200 जो इको सेंसिटिव जोन का जो जाहिरनामा जो बाहर आया उसमें 3 तरह की प्रवृत्तियां हैं। एक तो जो प्रमोटेड है जो कि हम लोग जिसमें कि हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज है उसमें उनको प्रोत्साहन दिया गया है उसमें किसी प्रकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक लिस्ट जो है हमारी वो प्रतिबंधित एक्टिविटीज़ की है जिसमें कमर्शियल माइनिंग है और फिर उसके अलावा या फिर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें जो है उनका प्रतिबंध है। उसके अलावा 19 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि रेगुलेटेड है उन 19 एक्टिविटीज़ में जिसमें कि हमारा ये आपका होटल रिजोर्ट वगैरह आ जाते हैं उस पर आपकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। सर किसानों को कन्विंस करने के लिए दूर करने के लिए हम लोग जो है गांव के स्तर तक विलेज लेवल तक अभी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। हमारा स्टाफ इसमें बीट गार्ड फॉरेस्टर आरएफओ एसीएफ डीसीएफ सभी लोग जो है फील्ड स्तर पर जाकर लोगों के साथ में संपर्क कर रहे हैं और जो गैर समझ है उसको दूर करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लोगों के जो मीन से जो हम माध्यम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा एक तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है जहाँ पे हम उस गांव में जाकर वहाँ पर पैम्पलेट देकर उनके साथ बैठकर उनके साथ बात कर वो भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया जो है उसका भी यूज़ कर रहे हैं जो भी गैर समझ हो रही है उसके ऊपर में रील्स वगैरह बनाकर हम लोग जो है डिजिटल मीडिया का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और जैसे कि आज की जो ये कार्यशाला भी जो हमने रखी है ये भी उसी का ही एक भाग है
कि जो भी जितने भी हमारे पत्रकार मित्र हैं वो एक जो सही मैसेज है वो आगे तक कन्वे कर सकें। सर 60 दिन के बाद जो आपने रेगुलेशन नंबर को जो ये सूचित इको सेंसिटिव जोन का जो जाहिरनामा बाहर आया है उसमें 60 दिवस का टाइम दिया गया है। वो 60 दिवस में जिसको भी कोई वांदा सूचन है उसमें हमारी जो ईमेल आईडी दी गई है वो और एक जो एड्रेस दिया गया है दिल्ली का, उस पर वो अपना वांदा सूचन जो है वो रजू कर सकते हैं। उसके बाद में वो सभी वांदा सूचन जो भी में एक प्रॉपर जो है उसका एनालिसिस होके और उसके बाद में जो फाइनल जाहिरनामा है वो बाहर में आएगा। सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई वांदा सूचन है और उसको भी छोड़ दिया जाएगा। वन विभाग की ओर से आज 2016 से ड्राफ्ट इको जो हमारा इको सेंसिटिव जोन है वो हाल लागू में ही है और 10 किलोमीटर की त्रिज्या में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इको सेंसिटिव जोन आने के बाद में जो खेडूत लोग जो हैं वो गुलाम बन जाएंगे। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो खेडूत जो है वो यहाँ के वो एक मेन स्टेक होल्डर्स हैं। तो किसी भी तरीके से ये कायदा जो है वो खेडूत विरोधी बिल्कुल भी नहीं है और खेडूतों को कोई भी प्रकार की इसमें तकलीफ हो ऐसी इसमें कोई जगवाई नहीं है। सर मतलब होता है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारे सेंचुरी और नेशनल पार्क होते हैं उसके चारों तरफ एक बफर जोन की तरह काम करता है। ये बफर जोन में हम लोग वन्य प्राणी और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग रहते हैं दोनों का सामंजस्य बैठे उसके लिए इको सेंसिटिव जोन का जो है डिक्लेरेशन किया जाता है। तो इको सेंसिटिव जोन का जो डिक्लेरेशन किया गया है ये वन्य प्राणी और साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब नियत रूप से चलती रहे, उसको लेके इको सेंसिटिव जोन का डिक्लेरेशन किया गया है। तो इको सेंसिटिव जोन जो है उसमें वन्य प्राणी प्लस जो आसपास के जो स्थानिक लोग हैं सभी उनको दोनों को साथ में रख के डिक्लेरेशन की गई है। ओके, थैंक यू। इको सेंसिटिव जोन अभी जो हमारा जो सूचित इको सेंसिटिव जोन जो है 19 सितंबर को जो आया है उसको लेकर कुछ जो गैर समझ जो हो रही है, जैसे कि जिसमें कि रात को हम लोग खेत में ट्रैक्टर नहीं चला सकते हैं या फिर हम लोग अपने खेतर के फटते वंडी नहीं कर सकते हैं या फिर हम लोग जो है अलग अलग तरह की पाक नहीं कर सकते हैं या एक निश्चित ऊंचाई से ज़्यादा की हम पाक नहीं कर सकते हैं। ये सभी जो है गैर समझ जो है इसको दूर करने के लिए आज शासन में सभी जो पत्रकार मित्र हैं उनको बुलाकर एक प्रेस कार्यशाला का जो है हमने एक आयोजन किया। तो उसके थ्रू हम यही माहिती देना चाहते हैं कि खेती से लगत जितने भी चीज़ें हैं उसमें कोई पर प्रकार की जो है पाबंदी नहीं है। इको सेंसिटिव जोन 2016 से अभी भी चालू ही है, तो इसको 8 साल हो गए हैं। और उसके अलावा भी अब जो इको सेंसिटिव जोन का जो नया जो हम लोग अभी जो ड्राफ्ट आया है उसमें भी ऐसी कोई जोगवाई नहीं है जिससे कि खेडूत मित्रों को कोई भी प्रकार की हानि हो सके। सर खास करके देखा जाए तो कितना घटाया गया है इको सेंसिटिव? अभी 2016 में जब ड्राफ्ट आया था उसके बाद में जब 2017 में जब हाईकोर्ट से स्टे आया उसके बाद से 10 किलोमीटर की जो त्रिज्या है उसमें इको सेंसिटिव जोन था उसका घटाना करके अभी जो है 196 गाँव जो है उनका इसमें समावेश किया गया है। पहले इसमें 389 विलेजेस थे और अभी जो इसमें समावेश जो है उसमें 196 विलेजेस का है। सर खास करके खेडूत को कौन सी परमिशन नहीं पड़ेगी अपने खेतों के लिए काम? देखिए अपने उनको अपने रहना के लिए कुछ खेत में कुछ बनाना है, कुछ गोडाउन बांधना है, उनको कुछ अपने खेत के चारों तरफ में कुछ जो दीवार करनी है या उनका अपना कोई रास्ता रिपेयरिंग करना है, उनको बीच कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, तो ये सभी बाबत में उनको वन विभाग से कोई प्रकार की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। किसकी परमिशन? तो अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो